हेलो एवरीवन। ये क्लास 10th की हिस्ट्री की द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का जो चैप्टर है हिस्ट्री में क्लास 10th का, उसका ये एक सेकेंड पार्ट है। अब हम आगे बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि जो नेटिव्स थे उनको स्लेव्स बनाया जा रहा था। जो कहीं के भी नेटिव्स थे उनको स्लेव्स बनाया जा रहा था। Under the 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. Religious conflicts were common and religious dissenters were persecuted. Thousands therefore fled Europe for America. Here, by the 18th century, plantation workers by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. यूरोप में क्या हो रहा था, कई तरीके की बीमारियां हो रही थी जिसकी वजह से यूरोप से लोग अमेरिका जा रहे थे और अफ्रीका से जो प्लांटेशन वर्कर्स लाए जा रहे थे जो यूरोप की जो मार्केट है उनके लिए क्या ग्रो कर रहे थे, कॉटन एंड शुगर। Until well into the 18th century, China and India were amongst the world's richest countries. They were also preeminent in Asian trade. However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contact and retreated into isolation. China और India इनका ट्रेड में बहुत बड़ा योगदान था, ओवरसीज ट्रेड में। हालांकि चाइना ने क्या किया कि अपने आप को पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ कर दिया और एक तरीके से आइसोलेशन मोड में चला गया। China's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westward. Europe now emerged as the center of the world trade. चाइना के आइसोलेशन लेते ही अमेरिका एक बहुत बड़ा जो है ट्रेड का एक सेंटर बन गया और यूरोप भी एक तरीके से बढ़ने लगा था। ठीक है, अमेरिका बढ़ रहा था और यूरोप बढ़ने लगा था। अमेरिका एक नई, एक तरीके से हम कह सकते हैं नई आशा की किरण बनकर के आया था पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के लिए। ओके, डिसेंटर। अब देखिए एक नया वर्ड है आपकी बुक में, डिसेंटर। तो डिसेंटर कौन होता है? जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को करने से मना कर देता है। ठीक है, वो होते हैं डिसेंटर्स। The world changed profoundly in the 19th century. Economic, political, social and cultural, technological factors interacted in the complex way to transform societies and reshape external relations. Economists identify these type of movement or flows within the international economic changes. The first is the flow of trade, which in the 19th century refers largely to trade in goods, example cloth or wheat. The second is the flow of labor, the migration of people in search of employment. The third is a movement of the capital for short-term and long-term investment over long distances. अब देखिए ट्रेड का जो मतलब था वो पूरी तरीके से बदल चुका था 19th सेंचुरी में। ट्रेड बेसिकली किस चीज का होता था? गुड्स, व्हीट का, फिर उसके बाद लेबर, माइग्रेशन, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और फिर कैपिटल का मूवमेंट, चाहे वो फिजिकल हो या फिर, ठीक है, इसका मूवमेंट शुरू हो गया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। गुड्स में व्हीट आ गया, लेबर में, लेबर किस चीज के लिए माइग्रेशन कर रहे थे? एम्प्लॉयमेंट थी। और कैपिटल कैसी थी? फिजिकल थी, जो कि आपका चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, लंबी दूरी के लिए। ऑल थ्री फ्लोज वर क्लोजली इंटरवोवन एंड अफेक्टेड पीपल लाइव्स वर मोर डीपली नाउ देन एवर बिफोर। और ये तीनों चीजें आपस में बहुत अच्छी तरीके से इंटरलिंक्ड थी और
लोगों की लाइफ और उनकी इकोनॉमी या और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उनको बदलने की ताकत रखती थी। द इंटरकनेक्शन कुड बी ब्रोकन sometimes. For example, labor migration was often more restricted than the goods or capital flows, yet it helps to understand the 19th century world economy better if we look at the three flows together. A world economy takes shape. A good place to start in the changing pattern of food production and consumption in industrial Europe. Traditionally, countries like to be self-sufficient in food, but in 19th century Britain, self-sufficiency in food meant lower living standard and social conflict. Why was this so? Population growth from the late 18th century had increased the demand for food grains in Britain. जैसे ही पॉपुलेशन ग्रेट ब्रिटेन में बढ़ती है तो फूड ग्रेन्स पर भी दबाव, जो प्रेशर है फूड ग्रेन्स पर, वो भी ज्यादा बढ़ने लगता है। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स, द गवर्नमेंट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न. The laws allowing the government to do this were commonly known as the Corn Law. Unhappy with the high food prices, industrialists and urban dwellers forced the abolition of Corn Law. ठीक है, तो कॉर्न का इंपोर्ट रोक दिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू। अब इससे क्या हो रहा था कि जो फूड ग्रेन्स है उनकी कीमत बढ़ गई और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो वहां के यूरोप के जो रहने वाले थे जो ब्रिटेन के जो रहने वाले थे, उन्होंने इस कॉर्न लॉ को हटाने की मांग करी। क्यों? क्योंकि कॉर्न की कीमतें बढ़ रही थी। पॉपुलेशन आफ्टर द कॉर्न लॉ वर स्क्रैप्ड, फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू कम्पीट विद द इम्पोर्ट। अब देखिए, ब्रिटिश एग्रीकल्चर के लिए क्या दिक्कतें आ रही थी कि वो इंपोर्ट से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। Vast areas of land were now left uncultivated and thousands of men and women were thrown out of work. They flocked to the cities or migrated overseas. अब देखिए क्या हो रहा था, जब एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में जो भी लोग उस समय शामिल हुए थे या शामिल थे, उनको किसी भी तरीके का वो जॉब नहीं मिल रही थी। अब जब जॉब नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे? कुछ हो नहीं रहा है। जब कुछ हो नहीं रहा है तो वो वहां से सिटीज में जाने लगे या ओवरसीज ट्रेड में इधर उधर माइग्रेट करने लगे। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज फ्रॉम द मिड 19th century. Faster industrial growth in Britain also led to the higher incomes and therefore more food import. Around the world, in Eastern Europe, Russia, America and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand. अब देखिए क्या हो रहा था, ब्रिटेन में फूड की यानी कि जो अनाज है उसकी कीमतें कम हुई और जो कंजम्पशन था ब्रिटेन में वो बढ़ गया। अब मिड 19th सेंचुरी में क्या हो गया कि जो अर्लियर इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी ब्रिटेन में और फास्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, जिससे कि क्या होने लगा, लोगों की इनकम बढ़ने लगी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ से इनकम ऊपर होने लगी और रशिया, ईस्टर्न यूरोप और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो लैंड्स थे उनको क्लियर किया जाने लगा, जिससे कि वर्ल्ड की जो फूड ग्रेन्स की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। इट वॉज नॉट इनफ मेरली टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू द पोर्ट। और देखिए, केवल एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं लैंड को क्लियर किया जा रहा था, बेसिकली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए एग्रीकल्चर लैंड को, मतलब जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया जा रहा था, जिससे कि जो एग्रीकल्चर लैंड को पोर्ट से जोड़ा जा सके। ठीक है, तो रेलवेज का लिंक बनाया जा रहा था।
New harbors had to be built and old ones expanded to ship the new cargoes. People have to settle on the lands to bring them under the cultivation. This meant building homes and settlement. All these activities in turn required capital and labor. Capital flowed from financial centers such as London. The demand for labor in places where labor was in short supply, as in America and Australia, led to more migration. अब देखिए क्या हो रहा था, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट्स बन रहे थे, रेलवेज हो रही थी, तो अब इससे क्या हो रहा था, जो लंदन जो एक नया सेंटर बन रहा था इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए और ट्रेड के लिए नया सेंटर बन रहा था, तो वहां पर लेबर्स की जरूरत पड़ रही थी. तो अब क्या हो रहा था, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से माइग्रेशन कहां हो रहा था, यूरोप के लिए. नियरली 50 मिलियन ऑफ पीपल इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका and Australia in the 19th century. All over the world, some 150 million are estimated to have left their home, crossed the oceans and vast distance overland in search of better future. यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया यानी कि 50 लाख लोग लगभग माइग्रेट करते रहे यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सीज को क्रॉस किया और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज और एक बढ़िया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की खोज में. 10 बाय आप देख सकते हैं, एक फिगर है आपकी बुक में. आयरिश इमिग्रेंट्स वेटिंग टू बोर्ड द शिप. आयरलैंड से लोग बाहर जाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे. 10 by 1890, a global agriculture economy had taken shape, accomplished by complex changes in labor movement pattern, capital flows, ecologies, and technology. Food no longer came from a nearby village or town, but from thousands of miles away. अब क्या हो रहा था, जो फूड था वो पास के खेतों से नहीं आ रहा था या पास के टाउन से नहीं आ रहा था. हजारों हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके फूड कहां पर आ रहा था, यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में. It was not grown by a peasant tilling his own land, but by an agriculture worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest. It was transported by railway, built for that very purpose, and by ships which were increasingly manned in these decades by low-paid workers from southern Europe, Asia, Africa, and the Caribbean. अब देखिए, दूसरे कॉन्टिनेंट से लेबर आ रहे थे. कहां से? एशिया से आ रहे थे, सदर्न यूरोप से आ रहे थे. कैरिबियन आइलैंड से आ रहे थे. तो और ये किसमें मदद कर रहे थे, रेलवेज बनाने में, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें काम करने के लिए. और बेसिकली जो शिप्स थे उनको बना रहे थे. तो जो लेबर्स का माइग्रेशन एक तरीके से पूरी तरीके से किसी भी जगह की इकोनॉमी को चेंज कर रहा था. सम ऑफ दिस ड्रामेटिक दो ऑन अ स्मॉलर स्केल अकर्ड closer home in West Punjab. Here the British Indian government built a network of irrigation canals to transform semi-desert waste into fertile agricultural land that could grow wheat and cotton for export. The canal colonies, as the areas irrigated by the new canals were called, were settled by peasants from other parts of पंजाब. अब इसी तरीके के चेंजेस इंडिया में भी आ रहे थे कि ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी, पंजाब से क्या कर रही थी, एक कैनाल निकाल रही थी जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान के आसपास का या जो सदर्न साउथ वेस्टर्न पंजाब के आसपास का रीजन है, वहां पर सेमी एरिड वेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव लैंड को बना रहा था, जिससे कि वीट और कॉटन का कल्टीवेशन हो सके. और वहां पर उसी नहर के किनारे ही, कैनाल्स के किनारे ही क्या बना रहा था, कैनाल कॉलोनीज, जो वहां के पीजेंट्स के रहने के लिए थी. Of course, food is merely an example. A similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to feed the British textile mint or rubber. Indeed, it so rapidly did regional specialization in the production of commodities developed that between 1820 to 1914, world trade is estimated to have multiplied from 25 to 40 times. Nearly 60% of this trade comprised of
प्राइमरी प्रोडक्ट्स दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट एंड कॉटन एंड मिनरल्स सच एज कोल। अब देखिए बेसिकली क्या हो रहा था कि इंडिया या दूसरी एशियन कंट्रीज इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज वो क्या बन रही थी, एक तरीके से फीडर इकोनॉमी बन रही थी यूरोप और ब्रिटेन के जो दूसरी कोलोनाइज जो कंट्रीज थी, ठीक है, जो हमारे ऊपर कॉलोनी बना के रखे हुए थे। तो इंडिया और दूसरी एशियन कंट्रीज क्या बन रही थी, फीडर इकोनॉमी। अब जैसे देखिए फूड, फूड में व्हीट और टेक्सटाइल के लिए जो ब्रिटेन की टेक्सटाइल है उनके लिए क्या कॉटन, और पावर के लिए कोल। इंडिया और दूसरी एशियन कंट्रीज फीडर इकोनॉमी बन रही थी। रोल ऑफ दैट टेक्नोलॉजी, what was the role of technology in all these? The railways, steamships, the telegraph, for example, were important inventions without which we cannot imagine the transform of the 19th century world. टेक्नोलॉजी ने भी बहुत बड़ा एक पिवटल रोल प्ले किया जो 19th सेंचुरी की जो इकोनॉमी थी या जो भी वर्ल्ड जो एक शेप ले रहा था, बिना टेक्नोलॉजी के ये सब चीजें इम्पॉसिबल समझ में आ रही थी। But technological advances were often the result of larger social and political and economic factors. For example, colonization stimulated new investment and improvement in transport. Faster railways, lighter wagons, and larger ship helped move food more cheaply and quickly from far away farms to final markets. अब देखिए रेलवेज और स्टीम इंजन्स या फिर जो शिप के बन जाने से जो प्रोडक्ट हो रहा था वो एक बल्क अमाउंट में जाकर के एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जहां से उसकी पैकिंग हो रही है या जो तैयार हो रहा है वहां से जब फाइनल मार्केट में पहुंचने में ज्यादा तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहा था। The trade in meat offers a good example of this connected process. Till the 1870s, animals were shipped live from America to Europe and then slaughtered when they arrived there. अब देखिए क्या हो रहा था 1870 से पहले, 1870 से पहले जो मीट था वो क्या हो रहा था कि जिंदा जानवर उसमें लाद दिए जाते थे शिप में और फिर वहीं पर उनको स्लॉटर किया जाता था जहां पर उनका फाइनल डेस्टिनेशन होता था। अब क्या हो रहा था कि रेफ्रिजरेशन के इन्वेंशन से क्या हो रहा था कि वहीं का जो मीट है, जैसे मान लीजिए शिकागो है, शिकागो अभी भी बहुत बड़ा रेड मीट या मीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो क्या होता है कि जानवर को वहीं काटा गया और उसका मीट वहीं पर प्रोसेस और पैक करके रेफ्रिजरेशन में पैक करके अब यूरोप को भेजा जा रहा था। अब इससे दिक्कतें क्या हो रही थी 1870 से पहले कि जो जानवर यहां आते थे वो क्या हो रहे थे, या तो रास्ते में वो बीमार हो जाते थे, उनका जो वेट था वो कम हो जाता था जिससे कि उनकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जा रही थी। और फिर उसके बाद मीट क्या हो रहा था, एक एक्सपेंसिव लग्जरी मानी जाती थी उस समय यूरोप में। And beyond the reach of the European poor. High price in turn keep demand and production down until the development of a new technology named refrigerated ships, which enable the transport of perishable foods over long distances. क्या हो रहा था कि अब जब रेफ्रिजरेशन का इन्वेंशन हुआ तो उससे जो पेरिशेबल गुड्स होते थे, पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जब मीट इसमें रखा जाने लगा रेफ्रिजरेटेड शिप्स में, तो अब उसके पेरिश होने की जो पॉसिबिलिटी थी वो
कम हो गई और जानवर को शिप में लादने की मजबूरी खत्म हो गई। नाउ एनिमल्स वर सॉर्टेड फॉर फूड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन द अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब क्या हो रहा था, वहीं पर उनको स्लॉटर कर दिया जा रहा था और मीट जो उस समय एक तरीके से जो रॉ मटेरियल जा रहा था, एनिमल्स जो रॉ मटेरियल जा रहे थे, अब उनको रॉ मटेरियल नहीं, अब सीधा सीधा मीट ही पहुंचाया जा रहा था। एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप एज फ्रोजन मीट। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड लोवर्ड मीट प्राइसेस इन यूरोप। अब इससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बची और जो मीट की कॉस्ट थी वो आधी हो गई यूरोप में। The poor in Europe could now consume a more varied diet to the earlier monotony of bread and potatoes। अब देखिए क्या हो रहा था कि जो पहले केवल आलू और ब्रेड पर जिंदा रहते थे यूरोप के लोग, अब उनके पास वैरायटी आने लगी। अब मीट जो पुअर लोग थे, पुअर भी उसका कंजम्पशन कर सकते थे। दो नॉट ऑल कुड नाउ एड मीट and butter and eggs to their diet. Better living conditions promoted social peace within the country and support for imperialism abroad। अब देखिए, जब बेटर लिविंग चाहे वो सोशल हो या पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल हो, तो एक तरीके से वहां पर शांति हो जाती है। अब क्या हो रहा था, अब दूसरी जगह पर कॉन्क्वेस्ट करने की रणनीति बनाई जा रही थी। अब देखिए, हमेशा मार्ग इसकी लड़ाई किस चीज के लिए होती है, रोटी के लिए। अब रोटी जो पेट की भूख वो तो कम होने लगी, अब क्या होने लगा कि अब आगे की रणनीति बनाई जाने लगी। देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है लेट 19th century colonialism. Trade flourished and market expanded in the late 19th century, but this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. It is important to realize that there was a darker side to this process. अब क्या हो रहा था, केवल ट्रेड इसी चीज के लिए नहीं बढ़ रहा था और प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि अब इसका डार्कर साइड सामने आता है। In many parts of the world, the expansion of trade and a closer relationship with the world economy also meant a loss of freedom and livelihood. आजादी छिन रही थी लोगों की और उनकी जो जीविका थी, जो लाइवलीहुड यानी कि जो कमाने का जरिया था, वो छिन रहा था। Late 19th century European conquest produced many painful economical, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the वर्ल्ड इकोनॉमी। लोगों की आजादी यानी कि चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या इकोनॉमिकल हो या पॉलिटिकल हो, वो छीनी जा रही थी। लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका इन फिगर 10, यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर रन स्ट्रेट एज इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग अ रूलर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था और कई जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वही अपनी कॉलोनीज इस तरीके के जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बना रही थी। वेल इन फैक्ट दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ राइवल यूरोपियन पावर्स इन अफ्रीका ड्रू अप द बॉर्डर्स एंड डिमार्केटिंग देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज दूसरे कंट्रीज में अपनी कॉलोनीज बना रहे थे और एक तरीके से अलग अलग जगहों पर अपना जो डिमार्केशन था कॉलोनीज का वो बना करके तैयार कर रहे थे। इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। बर्लिन में एक मीटिंग हुई कि अफ्रीका की कार्विंग हमारे बीच में होंगी, जो बड़ी यूरोपियन पावर्स थी। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th century. Belgium and Germany became new colonial powers. The US also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. तो अब देखिए इसका एक स्याह पहलू सामने आने लगा। Sir Henry Morton Stanley in Central Africa. Stanley was a journalist and explorer sent by the New York Herald to find Livingstone, a missionary and explorer who had been in Africa for several years. Like other European and American explorers of the time, Stanley went with arms, mobilized local hunters, warriors and laborers to help him, fought with local tribes, investigated African terrains and mapped different regions. These explorations helped the conquest of Africa. Geographical explorations were not driven by an innocent search for scientific information. They were directly linked to imperial projects.
मतलब एक तरीके से साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं ये लोग आ रहे थे। किस लिए आ रहे थे? इंपीरियल प्रोजेक्ट्स के लिए, कि किस तरीके से कहां पर क्या रिसोर्सेस मिल रहे हैं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके और अपनी जो मदर कंट्री है उसको किस तरीके से इकोनॉमी में बिल्डअप किया जा सके, उसकी इकोनॉमी कैसे बिल्डअप की जा सके। Rinderpest of the cattle plague in Africa in the 1890s, a fast-spreading disease of cattle plague or rinderpest had a terrifying impact on the people of livelihoods in the local economy. This is a good example of the widespread European imperial impact on the colonized societies. It shows how in this era of conquest, even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world. बीमारियां, जैसे कि हम पहले भी जान चुके थे कि बीमारियां एक तरीके से जो बड़े बड़े सिटीज थे या बड़ी बड़ी कंट्रीज थी जो कॉलोनीज बना रही थी और जो होस्ट इकोनॉमी थी उनके लिए एक अभिशाप बन करके आई थी। क्यों? क्योंकि बाहर के लोगों को ये चीज पता ही नहीं थी और वो इम्यून ही नहीं थे उस चीज के लिए कि हम कैसे इससे बचे। अब देखिए, जो कैटल प्लेग यानी कि जो रेंडर पेस्ट है वो अफ्रीका के जानवरों में फैलना शुरू हो गया और एक तरीके से वो एक भयानक तबाही बन करके सामने आया। Historically, Africa had abundant land and a relatively small population. For centuries, land and livestock sustained African livelihoods and people really worked for a